Before starting the video, like all of you come here after watching the thumbnail, let me tell you thank you. Personally, I don't like dark humor that much, but yeah, it doesn't mean I hate it. I listen sometimes as it way to laugh at different attitudes of life. I think almost everybody knows in real life you can't think that your every single joke makes sense to every single person who are watching you or listening to you. This clearly means on social media you can't tell every joke to every audience. This is why we should try not to say everything everywhere, because by doing this you may think at that time you look cool, but maybe you'll make fun of yourself, because the main thing is you can't explain everything to everybody. Now I know there are some person in your life who tries to understand you at every single time, but somehow you also have an idea that how many such guys are present in your life. Now whether it's the old generation or today's, jokes with dark humor are always there at somewhere at some point. But the main thing is where, when, and in front of whom you are cracking the particular joke. If you are telling some good thing to somebody, maybe nobody will pay attention to you. But if you start speaking something illogical or telling jokes with dark humor, good chances you will find somebody. The social media algorithm is also such that it promotes the thing that has been clicked by more audience. Now the content is good or bad, the algorithm doesn't care about this. It's only up to you who have to decide what to watch or what not. Now I think I have to take a break, otherwise you will also leave from here. 2,000 years later. So before starting the reaction, I will give you a small idea so that you guys will find not any problem. In further content, greater chances you all know Samir Raina maybe as a stand-up comedian or a good chess player. Yeah, who doesn't know about this? He's also a good chess player. But through his latest show, India's Got Talent, he has gained a lot of popularity in the IGL. Samir Raina is the host cum judge. Now, except Balraj, different judges were called to support Samir as judges. They watch the talent of the contestant for 90 seconds and give them rating. The contestants whose rating match the judges will be the winner of that day. Now, as we discussed about dark humor earlier, you must have guessed that this show is not a family entertainment show. But last month, an episode of this show released on YouTube only for channel's members. During this episode, famous YouTuber podcaster Ranveer Allahabadi asked a question which created a huge controversy, although that question was actually not good. Now we see the video based on it, height of stupidity. मैं दो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर सबसे पहले समझते कि हुआ क्या। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं जो कंटेस्टेंट के टैलेंट को देखते हैं 90 सेकंड्स के लिए। पर ये शो दूसरे टैलेंट शोज की तरह नहीं है। इसका इंस्पिरेशन एक अमेरिकन शो किल टोनी है, जबकि एंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट के टैलेंट से ही नहीं बल्कि जजेस के रिएक्शन और उनके जोक से आता है। इनमें से कई जोक्स आपको दूसरे कॉमेडी शोज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए शो नहीं है। इस शो के ह्यूमर को डार्क ह्यूमर कहा जाता है और कई जोक्स बहुत एजी होते हैं। शो के सारे एपिसोड YouTube में रिलीज करे जाते हैं और जहां मोस्ट एपिसोड्स फ्री हैं, कुछ बोनस एपिसोड्स भी हैं जो समय रैना के बस YouTube मेंबर्स ही देख सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए आपको करीब 60 रुपए देने होते हैं हर महीने के लिए। 8 फरवरी को सम एपिसोड रिलीज हुआ बस मेंबर्स के लिए, जहाँ कई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स थे, जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने सवाल पूछा। अब हो सकता है ये जोक ओरिजिनल भी ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते पहले अमेरिकन यूट्यूब चैनल ओजी क्रू में सेम लाइन बोली गई थी। अब जिस समय रणवीर ने जोक क्रैक किया, तब शायद उनको रियलाइज नहीं उन्होंने क्या बोला। पैनल और ऑडियंस भी उनके साथ हंस रही थी। पर एपिसोड के रिलीज होने के कुछ घंटे बाद चीजें बदल गई। ये क्लिप पूरी तरह वायरल हो गई। रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। जैसे ट्विटर या फिर एक्स पर ये वायरल हुई जब @fadedclone17 ने इस क्लिप को पोस्ट किया, जबकि अब ये अकाउंट डिलीट हो गया है। सब लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करने लग गए। ये वही आदमी है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया था। इस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए या फिर नहीं। कई सेलिब्रिटीज भी अपना ओपिनियन देने लग गए, जैसे जर्नलिस्ट और लिरिसिस्ट नीलेश मिश्रा ने क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज किया। पर ये मुद्दा बस सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, उसने डिजिटल बाउंड्री क्रॉस कर दी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्ट किया। शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगी, जबकि 2 मुंबई के लॉयर्स ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी रणवीर और दूसरे क्रिएटर्स के खिलाफ। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर
और महाराष्ट्र के विमेन कमिश्नर को लिखा कि कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने भी रणवीर के खिलाफ एक पोस्ट किया। एपिसोड के रिलीज होने के 2 दिन बाद रणवीर ने अपना पोस्ट डाला माफी मांगते हुए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पर उस रात 8 बजे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया एक्स पर कि वो रणवीर और दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं अभद्र चीजों को प्रमोट करने के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर बवाल मच जाता है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son getting into a 3. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन लें तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। तो बी प्राक अनाउंस करते हैं कि उनका पॉडकास्ट होने वाला था रणवीर के साथ, जिसको वो कैंसिल कर रहे हैं। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट यूट्यूब को नोटिस भेजती है कि उनको ये वीडियो हटाना होगा देश के आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 69A के तहत। मुंबई का साइबर डिपार्टमेंट फिर एक केस रजिस्टर करता है और मांग करता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट हो जाने चाहिए। 11 फरवरी को टीम रणवीर के घर के बाहर पहुंचती है। मुंबई पुलिस ऑफिसर बोलते कि 30 गेस्ट जो इस शो के सारे एपिसोड्स में आए उनको समन किया जा रहा है और ये शो देश के पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। 0R के दौरान शिवसेना के MP मांग करते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए। वो बोलते कि इन्फ्लुएंसर्स फ्री स्पीच को यूज करके क्या नॉनसेंस पोस्ट कर रहे हैं। याला कारण OTT प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन रणवीर, समय, अपूर्वा, जसप्रीत और आशीष को समन्स भेजता है। शो के प्रोड्यूसर्स तुषार और सौरभ को बोला जाता है कि उनको 17 फरवरी को न्यू दिल्ली पहुंचना होगा नेशनल कमीशन फॉर विमेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस दौरान टीवी चैनल्स 24 घंटे इस मुद्दे को ही कवर कर रहे हैं। बैकलैश इतना बड़ा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई लोग रणवीर को अनफॉलो कर देते हैं और समय रहना पोस्ट करते हैं कि उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल इंसेंटिव्स। लेट्स स्टार्ट विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 11 फरवरी को अर्नब गोस्वामी ने अपना प्राइम टाइम डिबेट ऑर्गेनाइज किया जिसका टाइटल था बियर बाइसेप्स फिल्थ। अर्नब गोस्वामी बोलते कि रणवीर इतनी घटिया भाषा कैसे यूज कर सकते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पर इस इशू को हटके हम 4 साल पहले जाते हैं। नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुए। उस समय महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं थी बल्कि उदय ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी की थी। कई बीजेपी मेंबर्स ने अर्नब की अरेस्ट को अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुलाया। इवेंचुअली अर्नब गोस्वामी को जेल से राहत मिल गई और इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने चीज कही। उन्होंने कहा कि मैं उसका चैनल नहीं देखता और चाहे आपकी अर्नब से आइडियोलॉजी मिलती भी ना हो, पर अगर आज कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे then we are traveling the path of destruction। देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता पर उसकी राइट जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स लोगों को टारगेट करने लग गई तो कोर्ट की जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की। अब आप बोलोगे मोहक तो क्या बात कर रहा है यार, इधर की बात उधर कर रहा है। अर्नब का केस अलग है, रणवीर का केस अलग है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने रिसेंटली रणवीर के डिफेंस में ट्वीट किया तो कई लोग जैसे इन महाशय ने मुझे रिप्लाई किया कि इसका मतलब है कि तुम रणवीर से अग्री करते हो, कैसे संस्कार है भाई तुम्हारे। पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि लोग वही चीज बोल सकते हैं जिससे मैं अग्री करता हूँ, बल्कि उसका मतलब होता है कि लोग वो चीज भी बोल सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कौन सी लिमिट्स? अगर कोई हेट फैलाए या फिर वायलेंस की मांग करे तब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता और उनको हमें रोकना चाहिए। पर बुरा जोक जो यूट्यूब वीडियो में बोला जाए, क्या वो जोक मेरे लिए फनी था? नहीं। क्या मैं उससे अग्री करता हूँ? नहीं। पर क्या इस वजह से रणवीर को जेल जाना चाहिए? नहीं। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, जैसे एनिमल फिल्म। पर क्या इसका मतलब है कि एनिमल फिल्म को बैन हो जाना चाहिए? नहीं। कई चीजें जो आपको जिंदगी में पसंद नहीं आएंगी पर उससे वो इलीगल नहीं हो जाती। अगर पसंद नहीं है तो उनकी आलोचना करो, चाहे तो रणवीर के घर जाकर धरना करो, उससे माफी मंगवाओ,
पर भाई बंदे ने तो अब माफी भी मांग ली, और क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग लीगैलिटी और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। Let them tell their story, their point of view. It's not necessary that you are going to agree with. Don't burden with your opinion. Morality is not equal to legality. Morality आती है पर्सनल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ से। आपके मॉरल्स मेरे मॉरल से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग के लिए गाली देना इमोरल होता है, जबकि कई लोग के लिए गाली देना इमोरल नहीं होता। तो मॉरल्स लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, पर लॉज नहीं। लॉ देश में सबके लिए समान होता है। अब हमारे देश में वो प्रैक्टिकली नहीं है, पर थ्योरी में जरूर है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि जो उनके लिए इमोरल है वो सभी के लिए इलीगल होना चाहिए। रणवीर का जोक इमोरल जरूर है मेरे लिए, पर इसका मतलब क्या वो इलीगल है? नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में डिफाइन किया गया है। ये लॉ कहता है कि सभी सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर इस स्पीच पर खुली छूट नहीं दे रखी सरकार ने। कुछ कंडीशंस के तहत आपकी स्पीच को रोका जा सकता है। ये है कि अगर आपकी स्पीच देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को टारगेट करती है, अगर स्पीच से वायलेंस, टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी बिगड़ सकती है, या फिर स्टेटमेंट से देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं दूसरे देशों के साथ। इसके अलावा अगर आपकी स्पीच से वायलेंस, रायट्स या फिर दंगे हो सकते हैं, या फिर कंटेंट ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यूज के खिलाफ है। अब ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यूज है क्या, ये डिफाइन नहीं किया गया, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बट बाय डिजाइन इस चीज को लिखा गया है ताकि सरकार जब भी चाहे किसी को भी अंदर कर दे। पर ये रिस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थी, बल्कि कुछ समय के लिए हमारे देश में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। पर ये चेंज हुआ जवाहरलाल नेहरू की बदौलत। बहुत अच्छी किताब लिखी गई है इस मुद्दे पर, जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी, जिसने इंडिविजुअल राइट्स और हमारी सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको परमानेंटली बदल दिया। आजादी के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ कई लीगल मुश्किलें आ रही थी अपने लॉज को पास करने के लिए। जैसे वो जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे और मीडिया पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते थे, पर वो ऐसे लॉज पास ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट ही कर दूं। इसीलिए उन्होंने पब्लिक ऑर्डर का टर्म डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्पीच पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है तो उसको रोका जा सकता है। अब कई पॉलिटिशियंस इस चीज के खिलाफ खड़े हुए, पर उनकी चली नहीं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने इसको जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने कहा कि मीडिया वाले देश के नौजवान को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई न्यूज़पेपर्स वल्गैरिटी और इनडिसेंसी से भरे हुए हैं, जिससे हमारी नौजवान जनरेशन के दिमाग में जहर घोला जा रहा है और उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मॉरल प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हम अपने नौजवानों को इस जहर से कैसे बचाएं। और 2025 में जो आप आर्गुमेंट सुनोगे ना, वो सेम ही है। लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना चाहते हैं, ये कहते हुए कि यंग जनरेशन बहुत बिगड़ रही है। किसके बेसिस पर? जोक के बेसिस पर। देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे रणवीर का जोक अच्छा नहीं लगा, पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा और आपको अच्छा नहीं लगा, उससे वो इलीगल नहीं हो जाता। मुझे प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी से। कुछ साल पहले एकता कपूर को पद्मश्री दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको पता है कि एकता कपूर कौन सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओन करती है? ऑल्ट बालाजी, जिस पर ये सब दिखाया जाता है। रवि किशन ने रणवीर के कंटेंट को क्रिटिसाइज किया। बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहाँ ताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। आप बोलोगे कि इन लोगों को भी जेल पे डाल दो, पर ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है कि कई चीजें हैं जिससे हम अग्री नहीं करते, जिसको हम इमोरल मानते हैं, पर उससे वो इलीगल नहीं हो जाती। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है पॉलिटिकल इंसेंटिव्स। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर, जो गुवाहाटी में बैठे हैं, उन्होंने फायर क्यों दर्ज करी इंडियाज गॉट लेटेंट के खिलाफ। अब आसान होगा ये बोलना कि इंडियन पॉलिटिशियंस को कुछ पता नहीं, वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, पर ये गलत है। उल्टा मैं मानता हूँ कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर स्मार्टेस्ट पीपल इन आवर कंट्री। वो जानते हैं कि उनकी जॉब क्या है, वो है इलेक्शंस को जीतना, और उनको पता है कि उन इलेक्शंस को वो कैसे जीतेंगे। और क्या ट्रिक है इलेक्शन जीतने की? विजिबिलिटी। जब तक पॉलिटिशियन पब्लिक की आंखों के सामने नहीं होगा, तब तक वो उनके दिमाग में नहीं होगा इलेक्शंस के दौरान। कार्तिक मुरलीधरन ने इसके बारे में बहुत लिखा है अपनी किताब में। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस हर बार वैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जिससे उनको इमीडिएट रिजल्ट्स मिले। सब्सिडीज, फ्रीबीज, हैंडआउट्स।
ये ऐसी चीजें हैं जिससे शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट मिल जाता है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पॉलिटिशियंस वो चीजें करते हैं जिससे वोटर को तुरंत पता लग जाए कि ये फायदा मुझे अपने पॉलिटिशियन ने दिया। बस हाईवे बनाना काफी नहीं है, हाईवे को इनॉग्रेट भी करना होता है। बस सब्सिडी देना काफी नहीं है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना जहां आप क्रिकेट मैच की तरह मैन ऑफ द मैच जैसी प्रेजेंटेशन करो वो भी जरूरी है। पर रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ ट्वीट करना तो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे पॉलिटिशियंस ने ये क्यों किया? विजिबिलिटी के लिए। आज के मीडिया एनवायरनमेंट में जब आपकी आंखों के सामने सैकड़ों वीडियोस हैं, उस समय विजिबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। और पॉलिटिशियंस को पता है कि बढ़ती हुई कंट्रोवर्सी में अपने हाथ निचोड़ने से उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट किया क्योंकि असम की बेरोजगारी को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है। लैंडसेट की स्टडी ने दिखाया कि हमारे देश के पोल्यूशन की वजह से शहरों में 7% डेथ्स एयर पोल्यूशन से होती है। पार्लियामेंट में 46% सिटिंग मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस है। देश में कोई भी शहर लिवेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब है, हर जगह धूल और मिट्टी है, कचरा पड़ा हुआ है और हवा में एयर पोल्यूशन है। पर अगर यूट्यूबर के जोक के बारे में नेशनल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए जिस पर मैं ट्वीट करूं, तो ना मेरे ऑपोजिशन को कोई अटेंशन देगा और ना देश की प्रॉब्लम्स पर। और इस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें इंडिया में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जाना चाहिए वॉशिंगटन DC, ट्रंप के पास। ट्रंप ने दिखाया कि अटेंशन को डोमिनेट करके किसी भी लीडर को कितना फायदा मिलता है। 30 साल पहले पॉलिटिशियंस डिबेट करते थे मुद्दों पर लोगों को कन्विंस करने के लिए। उस समय स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले लोगों का अटेंशन मिल जाए, जब अटेंशन मिल गया मुझे, तब मैं उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगा किसी भी पब्लिक पॉलिसी पर आज अटेंशन ही गोल है। इसलिए हर पॉलिटिशियन दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहा है विजिबिलिटी के लिए। और विजिबिलिटी पाने के लिए सब पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं? चिल्ला रहे। इमेजिन करो कि कमरे में कई लोग उसी के साथ बातें कर रहे हैं और सडनली आदमी आता है और वो लाउड स्पीकर पर चिल्लाने लग जाता है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो बोल क्या रहे हैं और उनकी बातों में कोई लॉजिक है या फिर नहीं। मैटर ये करता है कि सब लोग अभी उनको ही सुन रहे हैं। और यही हो गया हमारी पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए तो हमारी मीडिया चैनल्स ने भी छलांग लगा दी। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये साइकिल हर हफ्ते हमारे देश में रिपीट होता है। कुछ हफ्ते पहले सैफ अली खान नेशनल न्यूज थे, 3 साल पहले आर्यन खान की अरेस्ट नेशनल न्यूज थी, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। और हर मौके पर अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर आपको बोले थे जैसे मान लो उनका लाइफ मिशन है। पर कुछ दिन बाद सब गायब, तमाशा खत्म हुआ और सब लोग अपने घर चले गए। क्या किसी आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, पर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल गया और पॉलिटिशियंस को डिस्ट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्यन खान का ड्रग केस हो या फिर सैफ अली खान का अटैक केस हो, उन पर कुछ भी अटेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम है कि कितना ज्यादा अटेंशन दिया जाता है इन मुद्दों पर ऐसे देश में जहां गरीबी, भुखमरी अभी भी नॉर्मल चीजें हैं। आप खुद इमेजिन करो कि अभी असम पुलिस टीम है जो गुवाहाटी से मुंबई जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसी स्टेट में जहां 13,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। पॉपुलर राइटर नोम चॉम्स्की ने प्रोपेगेंडा मॉडल के बारे में बात करी थी, जहां वो कहते हैं कि कुछ मुद्दों को जानबूझकर एम्पलीफाई किया जाता है और दूसरों को इग्नोर। सेलेक्टिव आउटरीच जो हो रहा है रणवीर के जोक के बारे में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को समाज की परवाह है, बल्कि कन्वीनियंट चीज है। अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है पॉलिटिक्स और मीडिया का, ये दूसरे के साथ काम कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाया था रणवीर पॉडकास्ट के बारे में और उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोहक ने तो उसका डाउनफॉल प्रिडिक्ट किया था। भाई, मैंने रणवीर को क्रिटिसाइज नहीं किया था, उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज किया था। दोनों में डिफरेंस है। मैं रणवीर के कंटेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि मुद्दा रणवीर के जोक के बारे में है नहीं, मुद्दा है कि कौन कब वायरल हो रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों का अटेंशन बदलो, डिस्ट्रैक्शन को जीतने मत दो। Now please tell me your opinion.